Welcome, students. Um, this is the new lecture of marketing of services. And in the previous lecture, we were discussing about the Sarbuquel model, and we saw about the different gaps in Sarbuquel model. So we understood that there is a gap between customer expectations and the consumer expectations, and different things, delivery and the communication gap. So now we will be understanding the key factor which are leading to the gap. So first we will be seeing the gap one. So where the customer expectations and the company's perception of consume customers expectation. कस्टमर की एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कंपनी ने क्या परसीव करके रखा था कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस ऐसी होंगी. So it could be due to inadequate market research orientation. जो है मार्केट रिसर्च हमने पढ़ लिया है कि मार्केट रिसर्च में क्या क्या दिक्कतें थी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, या तो मार्केट रिसर्च जो है वो इनसफिशिएंट थी, दैट वाज नॉट प्रॉपरली डन, रिसर्च नॉट फोकस्ड ऑन सर्विस क्वालिटी, या जो मार्केट रिसर्च हुई दैट वाज नॉट फोकस्ड ऑन द सर्विस पैरामीटर, इनएडिक्वेट यूज, या फिर मार्केट को इनकरेक्ट वे में यूज किया गया. Then lack of upward communication. Upward communication means when we are talking from the lower level to upward level, lower level to higher level. तो उनके बीच में जो भी है proper interaction was not there. Insufficient communication between contact employees and managers. जो ऐसे employees, those who are in contact with the customers, they didn't send the correct messages, or there is some insufficient information from that contact employee to the higher managers, or you can say too many layers between the contact personnel and the top management, that like number of levels in between are there, like uska boss ka boss, तो बहुत सारी hierarchy थी, so that information ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, it get insufficient, या फिर वो जो properly communicate नहीं हुई, या the third reason could be insufficient relationship focus. यहाँ पे हो सकता है लैक ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, या तो मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ कि हमने किस बेसिस पे हमने जो टारगेट ऑडियंस है वो चूज करनी थी. फोकस ऑन ट्रांजेक्शन्स रेदर देन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग पे कोई फोकस नहीं था. फोकस ऑन न्यू कस्टमर्स रेदर देन द रिलेशनशिप customers. See, when we acquire a new customer, it will cost more than 5 times than the retaining a customer. जो आपका एक ऑलरेडी कस्टमर है उसको रिटेन करना इज मच चीपर देन एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, न्यू कस्टमर्स को पे फोकस किया rather than building the relationship. So this could be the reasons of gap one. Now gap two, जहां हमने बात की कि मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन और कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पुअर सर्विस डिजाइन, लाइक अनसिस्टमैटिक न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस. आपने देखा होगा कि न्यू सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, दैट वाज नॉट डन सिस्टमैटिकली. ठीक है. वेग अनडिफाइंड सर्विस डिजाइन, मतलब ऐसे सर्विस डिजाइन जिसका कोई, आप लॉजिकली देखा तो कोई मतलब नहीं है, दैट इज वेग. ठीक है, एम्बिगुअस है. एब्सेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स, एब्सेंस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट टू फोकस ऑन customer requirement, और absence of formal process of setting service quality goals. मतलब there is mismanagement जो भी है, जो मैनेजमेंट हुआ, the policy guideline जो भी बनी, that was not properly laid down. So no process management was there, so that there could be a focus on कि customer की क्या requirement है, या जो goal setting की गई है service quality के regarding, that was not done properly. इनएप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस, इसका हो सकता है कि फिजिकल एविडेंस, जैसे हमने बात किया, फिजिकल एविडेंस में जो चीज हम देखते हैं सर्विसेज में, जैसे कि क्लीनलीनेस है या फिर ड्रेसिंग सेंस है, तो दैट वाज नॉट इन अप्रोप्रिएट नहीं था. जैसे आपने कहीं अंदर किसी रेस्टोरेंट में गए, बहुत लिटर था, बहुत गंदगी थी, इट वाज नॉट, द वेटर्स वर नॉट clean, they were very untidy and shabby. So these could be the factors for gap two. Then third could be here it is the service delivery and the customer driven standards. It could be deficiency in human resource policies. They didn't recruit properly. Role ambiguity, roles clear nahi the, like who has to perform which particular task. Im- Poor employee technology job fit. जो employee उस technology के लिए fit नहीं था, recruitment of that particular employee will be an, it was not fit. Inappropriate evaluation and compensation system.
हो सकता है जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर compensation, so they are not doing work in a proper way. Lack of empowerment, perceived control and teamwork, there is a no teamwork. Suppose कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, we have to deal the work of other person, हमें दूसरे का काम भी करना पड़ता है. So in that situation the teamwork matters, so there could be a lack of teamwork which could lead to gap 3, that fail to match demand and supply. हमने जो मार्केट रिसर्च हमने अच्छे से नहीं की, we are not able to चेक की डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है, हमने बहुत ज़्यादा उतनी कस्टमर्स नहीं आए पर हमने बहुत सारा खाना बना के रख दिया, दैट इज़ कंप्लीटली अ वेस्ट. ठीक है, कस्टमर्स नॉट फुलफिलिंग रोल्स, कस्टमर लैक नॉलेज ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, customers negatively impact each other. Customers जो है वो they are spreading negative word of mouth. ठीक है, उन्होंने जो है they are impacting each other in a negative way. प्रॉब्लम विद सर्विस इंटरमीडियरीज, चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक चाहे वो होलसेलर है, रिटेलर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. इट कुड बी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, और इट कुड बी रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रिवॉर्ड्स की, ये मुझे मिलना चाहिए था, इट शुड दिस मच कॉस्ट शुड बी देयर. So this type of conflict should be there. Though that that can cause, or you can enhance the gap 3, tension between empowerment and control. दिस टाइप ये हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी कि एम्पावरमेंट अगर हम करते हैं तो हम कंट्रोल लूज करते हैं. तो अगर उसके बीच का जो प्रॉपर है वो नहीं होगा तो दैट विल क्रिएट अ, अगर बैलेंस नहीं होगा दोनों में तो दैट विल आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. डिफिकल्टी कंट्रोलिंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, सर्विस में एक चीज बहुत मैटर करती है, दैट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी. मान लो आपने एक बार बहुत अच्छा खाना बनाया, कस्टमर फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम द क्वालिटी वाज नॉट गुड, सो कस्टमर विल नॉट कम बैक टू यू, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर सर्विस, सो दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, जहाँ पे आता है गैप 4, दैट इज सर्विस डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. Now, lack of integrated service marketing communication. We studied role of communication. हमने अब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम इफ व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू डिफरेंट मीडियाज, इट कुड बी टीवी, प्रिंट या सोशल मीडिया से हमने अगर कम्युनिकेट किया तो एवरी मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि जो टीवी पे ऐड आ रहा है दैट इज सेइंग समथिंग डिफरेंट एंड द सोशल मीडिया ऐड इज सेइंग समथिंग डिफरेंट. ठीक है, so not including interactive marketing in communication plan, so that will also be a problem. This interactive marketing you will be studying in detail in the next lectures. Absence of strong internal marketing program, internal marketing program के लिए जो steps जो भी follow होते हैं, that is not done properly. Ineffective management of customer expectations, though they are not educating the customers, unless the customer is not educated or they are not having the complete and the full information about the product or the services, they are not able to communicate to the customers. जब employees के पास खुद ही information नहीं होगी, how they will communicate? So that could be the different one of the this could be the one of the factor that will add to gap 4. Over promising मतलब अपने एडवर्टीजमेंट में या पर्सनल सेलिंग के थ्रू आपने जो है बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉमिस कर दिया, बट एक्चुअल जब डिलीवरी की बात आई तो इट वाज नॉट फुलफिलिंग. आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था दैट वाज नॉट फुलफिलिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम सेम लेवल पे जो डिपार्टमेंट से उनकी बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा सेल्स और ऑपरेशंस है उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में नहीं है, जो पॉलिसीज है दैट वेरीज बिटवीन ब्रांचेस एंड यूनिट्स, so that could also lead to the gap 4. देन हम बात करते हैं कि कॉजेज बिहाइंड ब्रांड सर्विस स्विचिंग. क्यों हम कोई भी मतलब कोई कस्टमर है तो वो क्यों स्विच करेगा? इट कुड बी ड्यू टू प्राइसिंग, प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, या अनफेयर रैंडमली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखे हुए हैं, डिसेप्टिव प्राइसिंग, या कि जैसे दिखाया है कि इतना प्राइस है बट जब एक्चुअली लेने के उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें तो इतना प्राइसिंग है. ठीक है, इनकन्वीनियंस, और लोकेशन जो है वो सर्विस की बहुत दूर है, वेट फॉर अपॉइंटमेंट मतलब बहुत टाइम लग रहा है, लॉन्ग वेटिंग आवर्स है, सर्विस डिलीवरी टाइम है और बोला गया कि 15 मिनट्स में सर्विस डिलीवरी होगी पर आधे आधे घंटे तक कोई ऑर्डर नहीं आता है. दैट कुड ऑल्सो बी अ फैक्टर. देन कोर सर्विस फेलियर, सर्विस मिस्टेक्स हो गई, बिलिंग एरर है कि बिलिंग में 500 का बिल था, दे मेड ऑफ 1000, या फिर कुछ और ही ऑर्डर ऑर्डर कुछ और किया था, ऑर्डर कुछ और आ गया. सर्विस एनकाउंटर, इट कुड बी they are not caring, they are very rude, or
and responsive. You ordered like आपको एक और चपाती चाहिए, but nobody came to receive to give the chapati. So yeah, मतलब they are not caring, they are unresponsive, or they are not knowledgeable. This could be also be the factor behind the service switching. Response to service failure, negative response, reluctant response. If you ask for some information, they are not ready to give. Suppose you went to any hotel and you ask whether this type of rooms are available, but the service person is not giving proper reply, or they are reluctant, so that could be a reason for the failure. Then competition, you found the competitors better. Ethical problem, they are cheating, they are, it is unsafe, there's a conflict of interest. Or involuntary switching, customer moved because the provider closed the, because the service provider था उसने खुद ही अपना जो आउटलेट है वो बंद कर दिया, या दे stop providing the service. So this was all about the cervical model. Thank you.